रियासत भर में पल्स पोलियो का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इसी तरह वज़ीर दाखिला ने भी बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। रियासत भर में जुमला 52,93,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, जिसके लिए रियासत भर में 37,000 से ज्यादा पोलियो मराकज कायम किए गए थे। इसके अलावा 1,300 से ज्यादा मोबाइल टीमें भी तश्कील दी गई थी। As regarding of the pulse polio program, so that is today and the Sunday, and then first and the second, and also on the fourth day in all the corporations. So we are arranged all the arrangements, and then regarding the targeted children, 4,21,468 children are there in the Krishna district, and in that we are arranged about 2,568 booths are there. That booths are nearer to the UPSCs and the PSCs and also in the Sachivalayams and the nearby schools and Anganwadi centers. And every parent should aware all these things, and then you should take the polio drops for your children from 0 to 5 years age old. And then for that we are arranged for the mobile teams also. So these mobile teams will cover the high risk areas which are in the district, in the Krishna district are 368, which covers the 2,568 children, and where are the other transit teams like that in the railway stations and the bus stands, we are covering the remaining children also. So with the coordination of all the departments and with the advisors and the instructions from the district administration, we want to achieve the 100% by 2 days. करनूल के कदीम शहर में वाक़े इलाके गुड्डा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपर प्राइमरी स्कूल में यौम साइंस का इनेकाद किया गया। स्कूली तलबा की जानिब से साइंसी मॉडल्स तैयार किए गए थे। इलाके के अवाम व दीगर ने साइंस मॉडल का दौरा करते हुए बच्चों की सराहना की। रुकन बल्दिया जुबैर अहमद ने तलबा और असातिज़ा की सताइश की। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में बच्चों में तकनीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। तलबा जो है सही से जो है पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत से सब्जेक्ट्स पर जो है अपने टैलेंट जो है दिखाए हैं, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है और किडनी फंक्शन ऑफ किडनी है, और वो एटमॉस्फेयर के बारे में है, पोल्यूशन के बारे में है, और दीगर जितने भी जो साइंस के ताल्लुक़ से जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो है बच्चे यहाँ पे अपना टैलेंट जो है पेश कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और साथ साथ जो टीचर्स जो उनके साथ दिए हैं मैं उनका भी जो है मुबारकबाद अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जो भी स्कूल में जो भी काम रहे हैं इंशाल्लाह हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे पूरा डेवलप करने इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, और ये यूपी स्कूल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से जो है हाई स्कूल होंगे इंशाल्लाह, उसके लिए हम कोशिश। विजयवाड़ा जिले को विंगावीटी मोहन रंगा का नाम देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। विंगावीटी मोहन रंगा मित्रा मंडली की जानिब से धरना चौक पर एक रोज़ा एहतजाज किया गया। विंगावीटी मोहन रंगा मित्रा मंडली के कारकुनों ने जगन हुकूमत से अपील की कि वो फ़ौरन ज़िले विजयवाड़ा का नाम तब्दील करते हुए विंगावीटी मोहन रंगा का नाम दें। Of our Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy sir in the split and increase of the districts from 13 to 26 and changing of the names, especially for this Krishna district, he has taken a decision of making it 2 districts and named one district as NTR district, which is nowhere related to this particular Vijayawada, because whenever you utter the Vijayawada, definitely the people will remember the one and only people's leader who is ground level connected, especially for the below poverty people and the poor and underprivileged. That is Sri Wangaviti Mohan Ranga garu. But today, the neglecting this particular name is definitely will give a very much of negative reply and negative way of response to the present government, because people in large number are very much willing, not only in that particular district, even they have received so many representations from the other districts regarding the name which they have to change, especially this Vijayawada district as VMR district, that is Sri 24 और 25 फरवरी को नई दिल्ली में डेफ ओलंपिक के टेनिस खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। सेलेक्टर्स ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली जाफरीन शेख को टेनिस की अहम खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया है। 1 मई से 15 मई तक ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक के मुकाबले मुनक्किद होने वाले हैं। कौमी टीम में सिलेक्शन होने पर जाफरीन शेख ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुकाबलों में वो बेहतर मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल करेंगी।
जाफरीन शेख पिछले 2 साल से बेंगलुरु में ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। सैप चेयरमैन बाईरेड्डी श्रीधर रेड्डी की जानिब से जाफरीन शेख को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। अक़लियतों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली मुस्लिम हुकूक़ तंजीम करनूल यूनिट का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। करनूल के दफ्तर में मुनक़्क़दा जायज़ा इजलास में मुस्लिम हुकूक़ तंजीम के कन्वीनर फ़ारूक शिबली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास के दौरान तंजीम को मजबूत करने और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए काम करने पर जोर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए फ़ारूक शिबली ने आने वाले बजट में अक़लियतों के लिए इजाफी बजट मुख्तस करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। हुकूमत आंध्र प्रदेश से दिल की गहराइयों से हम जो है एक आजिज़ाना गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरीके के साथ जो बजट जो आने वाले दिनों में जो है बजट सेशंस हैं, तो स्पेशली जो बजट गुज़िश्ता 3 सालों से जो एलोकेट होता रहा, क्योंकि हम जो है हक़ीक़ी हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से हम आरटीआई का रिपोर्ट जो है हम मंगाते हैं और आरटीआई के ज़रिए से जो है कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना जो है आपने रिलीज़ किया, ये पूरे का पूरा हमारे पास हिसाब है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आपके पास मतलब जब से ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत आई है, तो इसके अंदर जो है कहीं पे भी जो है आप करनूल के कदीम शहर की मशहूर दरगाह हज़रत सैयद शाह रहीम शाह दाता हुसैनी चिश्ती के उर्स तकारीब का आगाज़ हो गया है। उर्स तकरीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। आज संदल माली की रस्म अंजाम दी गई। रस्म संदल माली में रुकन असम्बली हफीज़ खान ने भी शिरकत की। उन्होंने दरगाह पर चादर पेश की। सज्जादा नशीन हकीम बादशाह के मकान से संदल बरामद हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ सैयद शाह रहीम चिश्ती के आस्थाने पर पहुंचा। इस मौके पर रियासत में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान ने बताया कि 28 फरवरी को आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कमेटी कायम होने जा रही है। आंध्र प्रदेश में मौजूद अकाफ़ी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड का अहम मकसद होगा। रुकन असम्बली हफीज़ खान को भी वक्फ बोर्ड का रुकन बनाया गया है। 28 फरवरी को नई कमेटी कायम होगी। उसी दिन से नई कमेटी अकाफ़ी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अपने काम काज का आगाज़ करेगी। करके 28 तारीख को मेंबर्स का इलेक्शन है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जल्द से जल्द ये बोर्ड को क़ायम करके जितने भी लोगों के जो भी अभी पेंडिंग फाइल्स हैं, जो बोर्ड नहीं रहने की वजह से नहीं हो सक रहे थे, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करके उन सारे हजरात को जो है इंसाफ करे सो वैसा काम करेंगे। और आने वाले दिनों में वक्फ के लैंड्स को प्रोटेक्शन करने में और इनकम बढ़ाने में और सही मुतवल्लियों को उनका हक़ दिलाने में, ये सारे जितने भी काम रहेंगे वक्फ बोर्ड के, वो सारे के सारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और कमेटी सारी मिलके करेंगी। मैं भी उसमें, मेरे को भी एक मेंबर के वैसा दिया गया है। मुझसे भी जो भी राय पूछी जाएंगी वो अच्छे काम के वास्ते हम ज़रूर उसको रख के इस बोर्ड से अच्छे काम लेने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करें। मुल्क की 5 रियासतों में जारी असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होगी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत से जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों के दौरान बीजेपी दौरे हुकूमत में मुल्क में बड़े पैमाने पर मईशत तबाह हुई है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। रामकृष्णा ने बीजेपी को सबक सिखाने की आवाम से अपील की है। People of this country, all secular and democratic parties of this country, they are all expecting that the BJP should be defeated. They are all wishing that BJP should be defeated. If BJP is defeated, बेघर अफराद के लिए तामीर करदा मकानात को जल्द से जल्द उनके हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश शहरी हुकूक तंजीम के कन्वीनर बाबूराव ने कहा कि टिडको की जानिब से तामीर करदा मकानात जल्द से जल्द बेघर अफराद को अलॉट किए जाएं। आज उन्होंने टिडको की जानिब से तामीर किए गए मकानात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने 30 लाख बेघर अफराद को मकानात देने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। Was no progress till 3 years. The number of houses were completed, but they are vacant. They are not allotted. The public money was misused by the state government. So we are conducting dharnas on 28th in Vijayawada also in front of municipal office. We will intensify registration. We are warned government
to immediately hand over the housing for the poor. If they fail, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।